جس کو اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں داخل کر کے اس امت کو بہترین امت بنایا۔ اور یہ بہترین امت کیوں بنی؟ کیونکہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہیں اور یہ برے کاموں سے روکتی ہیں۔ تو یہ تو ہمارا فرض بھی ہو گیا اور ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہو گئی، یعنی کہ ہمیں امت محمدی میں داخل کر کے اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر فضل اور کرم کیا نا، اور ایک اعزاز جو ہمیں دیا ہے، تو اب اس کے حساب سے ہماری ذمہ داری بڑھ گئی۔ ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ اب ہم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں گے تاکہ ہم خود بھی بچیں اور پھر آگے دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو یہاں پہ ہم نے سب یہی دیکھا کہ اللہ رب العزت کی حکم کی فرما برداری کرنے والے لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ، اور ان کی صفات کیا ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کیا سزا دی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں مزید دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیسو نہیں ہیں سب، وہ سب سواءن برابر، وہ سب برابر نہیں ہیں۔ یہاں پہ اس سے پہلے جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے نا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے، جن کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی محتاجی، اور جن کے اوپر تھوپ دی گئی تھی ذلت، یہ ان لوگوں کا ہی ذکر آگے چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ نافرمان تھے، اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری مصیبتیں، یعنی کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر اس وجہ سے بنا دی گئی تھی۔ آگے بھی انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت، قائمتن قیام کرنے والی ہے، یعنی کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے بھی ایک جماعت جو ہے وہ قیام کرنے والی ہے۔ یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی، آنا اللیلی رات کے اوقات میں، وہم اور وہ سب یسجدونا وہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے نا، وہ ایک اہل کتاب کے ہی ایک خاص گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، کہ اہل کتاب میں سے بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ کچھ ان لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پہ عیسائی راہب، ان کی ایک کثیر تعداد اس کردار کی حامل تھی، یہ جن کا ذکر ہے نا یہاں پر۔ ان میں سے ہی ایک بحیرہ راہب بھی تھا، جس کے متعلق آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، جس نے بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ یہود بھی اکا دکا لوگ اس طرح کے باقی رہ گئے تھے، لیکن اکثریت یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا۔ البتہ عیسائیوں میں کچھ لوگ ایسے موجود تھے جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت جو ہے نا، وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں تھوڑے سے لوگوں کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کر دیا کہ اہل کتاب بھی سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی آیات کو مانتا ہے، دن اور رات کے اوقات میں اللہ رب العزت کی کو سجدہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اس کو آگے دیکھیں گے، ابھی ہم گرامر کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں۔ لیسو نہیں ہے، فعل ماضی ناقص ہم جانتے ہیں، لیسا کی گردان میں سے ہی یہ لیسو جمع مذکر غائب میں جا کر یہ صیغہ بنا، لیسا لیسا لیسو۔ تو لیسو فعل ماضی ناقص جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ اپنا اسم اور اپنی خبر بنائے گا۔ اس کا اسم اور اس کی خبر کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کانا کی فیملی کا رکن ہے، تو جیسے کانا کا اسم مرفوع ہے نا، اس کا اسم بھی مرفوع ہوگا، جو کہ اس کے اندر کی ضمیر ہے۔ ہم کی ضمیر اسم لیسا ہے، اور سواءن یہ جو منصوب اسم ہمارے پاس آیا ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ خبر کیا ہے؟ کہ وہ سب برابر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ لیسا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہی ہوگا، جملہ اسمیہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ لیسا جو ہے نا، یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ کے اوپر ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کانا بھی، انا بھی اور لیسا بھی یہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتے ہیں، تو جملہ جو ہوگا اینڈ پہ وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا۔ من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، اب بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں لوگ کس طرح کے ہیں۔
मिन अहलिल किताबी को पहले हम मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, फिर मिन हरफ जार की वजह से मुरक्कब जारी करके इसको पूरा खबर मुकद्दम बना देंगे। क्योंकि खबर देखिए, अहले किताब में से एक पूरी खबर का पैटर्न बन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुरक्कब जारी जुमले के शुरू में होगा, लेकिन वो मुतालिक बन रहा होगा पीछे वाले हिस्से के। उसकी वजह क्या होगी, उसके मीनिंग्स के हिसाब से होगा वो। अगर उसके मीनिंग्स खबर का मायने पैदा कर रहे हैं तभी वो खबर बनेगा ना। और अगर उसके मीनिंग्स में कोई खबर वाली बात है ही नहीं, फिर हम उसको खबर नहीं बना सकते, फिर वो मुतालिक ही बनेगा किसी चीज के। तो यहाँ पे मिन अहलिल किताबी खबर मुकद्दम है, उम्मतुन काइमातुन मुरक्कब तौसीफी का पैटर्न हो जाएगा और मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। यानी अहले किताब में से एक जमात कयाम करने वाली है। ये पूरा जुमला इस्मिया हो गया। ठीक है, मुब्तदा मुअख्खर होकर आया और खबर मुकद्दम होके आई। खबर मुकद्दम का मालूम है हमें कि खबर मुकद्दम इसलिए होती है कि खबर खास होती है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये जो उम्मत है ना, अहले किताब में से एक उम्मत ऐसी है जो कयाम करने वाली है। अब इस उम्मत को हम मौसूफ रखेंगे और इसकी सिफात आगे जुमलों में आएंगी। जैसे हमने पीछे वाले जुमले में भी देखा था ना, एक मौसूफ उम्मत बन गई थी। वो उम्मत कौन सी थी? वो खैर निकालने वाली उम्मत थी। अब अहले किताब में जो उम्मत मौजूद है ना, जो पहली सिफ्त उसकी आ गई कि वो कयाम करने वाली है। अब इसकी मजीद सिफात भी आएंगी छोटे छोटे जुमलों की सूरत में। तो हम उस सब को जो है ना, वो मौसूफ की सिफ्त बनाकर और फिर बना देंगे मुब्तदा मुअख्खर। यानी ये सिर्फ इतना सा मुब्तदा मुअख्खर नहीं है, ये फिर इस अपने साथ सिफात मजीद भी लेकर आ जाएगा। ऐसा होता है ना कि जब देखिए हमने उम्मत, एक मौसूफ आ गया हमारे पास, इसकी सिर्फ एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो हम इसकी एक से ज्यादा सिफात के साथ इसको मिला के फिर मुरकबे तौसीफी बना लेंगे। जैसे हमने देखा कि एक मुजाफ हो तो उसके साथ मुजाफ अलैह ज्यादा भी बन सकते हैं। जैसे हमने देखा एक हरफे जर बहुत सारे हरूफ को, इसमों को मजरूर कर सकता है, तो एक मौसूफ के साथ ज्यादा सिफात भी आ सकती हैं। ठीक है, तो एक सिफ्त तो इसकी हो गई काइमातुन, यानी कि वो कयाम करने वाली है। आगे देख लेते हैं दूसरी सिफ्त इसकी कौन सी बनेगी। यतलूना, वो तिलावत करते हैं। यतलूना फेले मुजारे वाहिद जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। अब ये चूंकि फेल मैम है। डिलीट कर दो सर। जी मैंने कर दिया। अब चूंकि ये फेल है ना, तो जुमला फेलिया बनेगा यहाँ पे। यतलूना, वो तिलावत करते हैं, तालाम बारूट वर्ड के साथ, फेले मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात की, आयातिल्लाही दो इसम आगे हमारे पास मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। ठीक है, ये आयाती जो है ना, असल में ये मंसूब हालत है इसकी। ये हालत नसब और जर में दोनों एक जैसी नजर आते हैं। आयातु, आयाती, आयाती, तो इसलिए ये मुरक्कब इजाफी हो गया। आना अल्लैली, आना अल्लैली भी मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। हमजा नून या और लाम, या लाम रूट वर्ड के साथ दो इसम हमारे पास आ गए। ये मफूल सानी होगा यतलूना फेल का। ये दोनों मफूल हैं। तो यतलूना अपने फाइल, क्योंकि फाइल इसके अंदर हम की जमीर मौजूद है, वो सब तलावत करते हैं ना वो, और दोनों मफऊलों के साथ मिलके जुमला फेलिया हो गया। और ये जुमला फेलिया जो है ना, सिफ्त टू बन जाएगा। हमने देखा है ना कि जुमला फेलिया पूरा एक पैकेट होता है, और इस पैकेट को हम यूज करते हैं कहीं पर भी जहां पे हमें जिस तरह जरूरत होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये सिफ्त के हिसाब से बनकर आ रहा है कि जो रात के औकात में अल्लाह की आयात की तलावत करते हैं। एक ये बन गई सिफ्त नंबर टू। वाह, और वाव आतफ के साथ जुमला जुड़ेगा, सिफ्त एक और बनेगी। हुम, वो सब मुब्तदा, यसजुदूना, वो सजदा करते हैं, फिल मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा, सीन जीम दाल इसका रूट वर्ड और ये इसकी खबर। तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। ये जुमला इस्मिया वाव आतफी के जरिए पीछे जुमले का हिस्सा हो गया। पीछे वाला जुमला भी चूंकि सिफ्त बन रहा है, चाहे इन दोनों को वाव आतफी के जरिए जोड़ के एक ही सिफातैन बना लें, या फिर सिफ्त टू और सिफ्त थ्री, यहाँ तक जो है ना, वो एक जो उम्मत बताई गई ना, अहले किताब में से जो उम्मत है उसकी सिफात के साथ ये पूरा जुमला जो है, उम्मतुन
के साथ सिफ्त और मौसूफ बन गया, और फिर मुब्तदा बन गया मुअख्खर यहां तक जुमले का हिस्सा। ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये पैटर्न आपको जल्दी ही समझ आने लगेगा। वैसे छोटे छोटे जुमलों को जोड़ लेना तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मिन अहलिल किताबी आया एक खबर मुकद्दम। अब खबर मुकद्दम के साथ मुब्तदा मुअख्खर, पहले हमने देखा कि एक वर्ड भी होता था, दो वर्ड भी हो जाते थे, और अब हम इस तरह देख रहे हैं कि जहां तक सिफ्त नजर आ रही है हमें, उर्दू में भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक जमात कयाम, एक जमात है मौसूफ जो कयाम करने वाली है, उसकी एक सिफ्त ये है। फिर वो तलावत करते हैं अल्लाह की आयात की रात के औकात में, ये भी इसकी सिफ्त आ गई। और वह हम यसजुदूना, और वो सब सजदा करते हैं, ये भी इसकी सिफ्त आ गई। तो हम सिफात के हिसाब से ही पैटर्न बना रहे हैं ना। तो ये सारी सिफात मिलके मुब्तदा बन जाएंगी मुअख्खर, और इस तरीके से खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इस जुमले को जोड़ लेंगे। युमिनूना, वो सूरा आल इमरान की आयत नंबर 114 को देखते हैं। युमिनूना, वो ईमान रखते हैं, बिल्लाही, अल्लाह ताला पर, वल यौमी, और दिन पर, अल आखिरी, आखरत के, व यअमुरूना, और वो हुक्म देते हैं, बिल मारूफी, अच्छी बात का, भलाई का, व यनहौना, और वो रोकते हैं, अनिल मुनकरी, अनिल मुनकरी, बुराई से, वयुसारिऊना, और वो भाग दौड़ करते हैं, फिल खैराती, खैर के कामों में। अब आप ये देखिए कि ये सारा क्या बन रहा है, ये भी तो उन्हीं की सिफ्तें आ रही है ना। वो क्या क्या करते हैं, वो कयाम करते हैं, वो अल्लाह की आयात की रात के औकात में तलावत करते हैं, वो सजदा करते हैं, वो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान रखते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और खैर के कामों में भाग दौड़ करते हैं। तो ये देख लीजिए आप कि ये भी पूरी उसकी, हम इसको सिफात भी बना सकते हैं। ठीक है। युमिनूना फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है, जुमला फेल से शुरू हो रहा है, लिहाजा जुमला फेलिया बनेगा। बिल्लाही, साथ अल्लाह के, भी हरफे जार, अल्लाह ही मजरूर मुरक्कब जारी, मुतालिक युमिनूना फेल के, वल यौमिल आखिरी, अल यौमी अल आखिरी, दिन, दिन कैसा है वो, आखरत का है। तो मौसूफ और सिफ्त मुरक्कब तौसीफी का पैटर्न, वाव अतफ के जरिए अल्लाह ही के साथ मुरक्कब अतफी बनाया, और बी हरफे जार की वजह से सारा मजरूर हो गया, यहां तक मुरक्कब जारी बन गया। अब ये मुरक्कब जारी बिल्लाही वल यौमिल आखिरी, ये युमिनूना फेल के मुतालिक होके पूरा जुमला बन गया। कैसे, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया में युमिनूना फेल बा फाइल और मुतालिक बन के जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। वाह और वाव आतफ है। अब हम इसको भी सिफ्त बना देंगे। ठीक है, इसको सिफ्त नंबर 4 बना देंगे। व या मुरूना, और वो हुक्म देते हैं, वाव हरफे अतफ है, या मुरूना फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, हमजा मीम रा इसका रूट वर्ड है, बिल मारूफी, अच्छी बात का, भलाई का, बी हरफे जार, अल मारूफी मजरूर इसम, आइन रा फा इसका रूट वर्ड है, और ये या मुरूना फेल के मुतालिक होके जुमला फेलिया हो गया। वयनहौना, वाव अतफी के जरिए ये भी सिफ्त हो गई, एक सिफ्त नंबर 5। वयनहौना, और वो रोकते हैं, नून हा या इसका रूट वर्ड हो गया, फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब का सीगा, और ये सिर्फ 4, ये सिर्फ 5, ये आगे यनहौना होगी सिर्फ नंबर 6। यनहौना, और वो रोकते हैं, अनिल मुनकरी, बुराई से, अन हरफे जार है, अल मुनकरी मजरूर हो गया, मुरक्कब जारी का पैटर्न, मुतालिक हो गया यनहौना फेल के, तो फेल फाइल मुतालिक जुमला मुकम्मल, वो बुराई से रोकते हैं, जुमला फेलिया। ठीक है, ये भी सिफ्त बन गई 6। वयुसारिऊना, और वो भाग दौड़ करते हैं, फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा,
सीन रा आइन रूट वर्ड, और फिल खैराती मुरक्कब जारी, फी हरफे जार, अल खैराती मजरूर, मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया युसारिऊना फेल के, तो फेल फाइल और मुतालिक मिलके जुमला फेलिया मुकम्मल, और सिफ्त नंबर 7 आ गई। तो अहले किताब की ये 7 सिफात आई हैं कि वो क्या करते हैं, वो नेकी के काम बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से अल्लाह की नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा है ऐसे लोगों को, उलाइका व उलाइका, और यही लोग मिनस सालिहीना, सालिहीन में से हैं, यही लोग सालिहीन में से हैं। यानी कि ये वो लोग हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको वईद सुनाई, खुशखबरी सुनाई कि वो अब नेक हैं, सालिह हैं। हम इसकी तफसील से देखेंगे। उलाई का मुब्तदा है, मिनस सालिहीना मुरक्कब जारी का पैटर्न बन के ये खबर है कायम मुकाम। तो मुब्तदा अपनी कायम मुकाम के साथ खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। अच्छा, हम यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, अहले किताब का बा ईमान ग्रोह है। ये अहले किताब के इस ग्रोह का कलील जिक्र है जो अक्सर इससे मुस्तस्ना है, यानी कि ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है। मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से थोड़े से लोग ऐसे हैं, यानी सब अहले किताब ऐसे नहीं है। एक ग्रोह है जो अपने अहद पे कायम है, शब्बेदार तहज्जुद गुजार है, अल्लाह और आखिरत की किताब के ऊपर ईमान रखते हैं। यही वो लोग हैं जो अलल इलान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला चुके हैं। ऐसे लोग भी थे जो अगरचा इन आयात के नजूल के वक्त अपने इस्लाम का ऐलान तो नहीं कर सके थे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल मोमिन, बिल्कुल सादिक थे, और बिल आखिर आगे चलकर वो इस्लाम ले आए। तो इन लोगों को कुरान ने सालिहीन और मुत्तकीन में शुमार किया। ये लोग जो नेकी भी करेंगे उसके अजर से महरूम नहीं रहेंगे। ये इस्लाम में आ जाने के बाद अपनी नेकियों को भी पूरा पूरा अजर पाएंगे जो उन्होंने इस्लाम लाने से पहले की हुई थी। इसी ग्रोह का जिक्र कुरान ने इस सूरत के आखिर में भी फरमाया है, जिसका तर्जुमा है कि बेशक अहले किताब में से ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस चीज के ऊपर भी ईमान रखते हैं जो तुम्हारी तरफ उतारी गई, यानी कुरान के ऊपर, और जो उनकी तरफ उतारी गई है खुदा से डरते हुए, यानी कि वो जबूर सॉरी इंजील पे भी यकीन रखते हैं, लेकिन वो साथ कुरान के ऊपर भी यकीन रखते हैं अल्लाह से डरते हुए। ये अल्लाह की आयत के इवज में हकीर कीमत कबूल नहीं करते। यही वो लोग हैं जिनके लिए उनके रब के पास उनका सिला है। तो बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। ये सूरह आले इमरान की हम आगे भी देखेंगे। तो पता क्या चला, ऐसे लोग जो अहले ईमान हैं लेकिन वो अल्लाह रब्बुल